Okay, so let's continue exercise 4.6, question number 18. Okay, see what is given. Find matrix X such that A into X is equal to B. Okay, solution. Consider the matrix equation. देखो ऐसा, consider the matrix equation. So let's write down. Consider the matrix equation is A into X is equal to B. ठीक है? Now just give me 2 minutes to write and explain. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम करेंगे प्रॉब्लम को साथ में. ओके, नाउ मैट्रिक्स ए एंड बी इज ऑलरेडी गिवन टू अस एंड मैट्रिक्स इक्वेशन इज अवेलेबल. ठीक है ना? अभी आप देखो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 2. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2 क्रॉस 1 एंड वी वांट कैपिटल एक्स. वी वांट मैट्रिक्स कैपिटल एक्स. Now please remember, matrices में division possible नहीं है. You can't write down A into X is equal to B दिया है, तो you can't write down X is equal to B upon A. No, this is not true. You can't divide. No, we can add, we can subtract, we can multiply the matrices, but उसका division नहीं possible होता है ना? तो ये option हमारे पास नहीं है. ठीक है? But still we need matrix X. Now recollect, in the beginning I have explained you one thing. Just have a look. I have given you this arrangement A into B equals to C. तो अगर A का ऑर्डर है M क्रॉस N एंड B का ऑर्डर है N क्रॉस P, देन मैट्रिक्स C का ऑर्डर इज नथिंग बट M क्रॉस P. इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है. और यहाँ पे ये दोनों एंट्रीज सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of the second matrix. ठीक है? तो ये आप इससे कंपेयर करो. देखो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1. तो बाय दिस कंसेप्ट कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स X? ट्राई. 2 क्रॉस 1. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट बाय दैट. 2 क्रॉस 1 होना चाहिए. देखो, A का ऑर्डर M क्रॉस N है, इसका N क्रॉस P है, तो इसका M क्रॉस P. तो वी वांट N क्रॉस P. N मींस दिस नंबर. तो ये नंबर है 2 क्रॉस P. P की जगह पे 1 है, तो 2 क्रॉस 1 होना चाहिए. हाँ, तो लिखो, कंसिडर दिस इज द क्वेश्चन का सॉल्यूशन. और ये कंसेप्ट है, तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो आप नोटबुक में. ये आप साइड में लिख लेना. Note down as a reason. This is explanation कि how we got this matrix X का order 2 cross 1. Okay. Now matrix X का order is 2 cross 1 means there are 2 rows and 1 column. तो वैसे लिखो आप, let matrix X be a column matrix. Let us take this matrix as X as A comma B. इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1. मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में दिया है. मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो अवेलेबल. मैट्रिक्स एक्स इज टू बी फाउंड आउट. तो बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स वी हैव फाउंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स व्हिच इज 2 क्रॉस 1. तो लेट्स से एक्स इज इक्वल टू ए बी. यहाँ पे कौन से भी दो ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी यूज कर लो. ठीक है? नाउ लेट्स कंटिन्यू अहेड. अभी ये मैट्रिक्स इक्वेशन इसमें ए दिया हुआ है, तो लिखो देयरफॉर let's write down matrix A 1 minus 2 in the first row minus 2 1 in the second row. This is matrix A given into matrix X. Matrix X is AB. It's a column matrix and this is equal to matrix B which is a column matrix and which is given as -3 and -1. ठीक है? मैट्रिक्स A was available. ये X है, ये B है. चलो, now let's quickly multiply these two matrices on the left hand side. चलो, I give you 30 seconds. Multiply the matrices that are present on the left hand side. Matrix multiplication carry on करो.
So row to the column, pick up the row, place it on the column. So first row to the first column. So this will give us A minus 2B, row to the column. Now by now you should know how to multiply. Row को उठाने का, column के ऊपर रखने का, ठीक है? And the second entry will be minus 2A plus B. And this is equal to the column matrix minus 3 minus 1. Now see, both these matrices are equal. So you know what is to be done by equality of matrices. By equality of matrices, what we are going to get, right down students? A minus 2B is equal to negative 3. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1. And minus 2A plus B is equal to negative 1. इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2. Now solve these two equations simultaneously और आप करके मुझे बताओ A का वैल्यू एंड B का वैल्यू. Okay, come on, do this working and tell me the value of A and B. Done, sir. Done? Okay. Okay. So can you just tell me what is value of A and B? क्या मिला A और B का value? A is 5 by 3. Okay, one second. A is 5 by 3. Okay, and B? Yes, and what is B? 8 by 6. 8 by 6. No, 8 by 6 नहीं आएगा. देखो वापस. A is 5 by 3 is correct. 7 by Yes, correct. 7 by 3 आएगा. देखो. Please check. A is 5 by 3 was okay. B should be 7 by 3. Please check your values. You should get them. Please cross check with your answer. These are the correct values. A का value 5 by 3 है, B का value 7 by 3 है. आप चाहिए तो इसमें डाल के देख सकते हो. 5 by 3, ठीक है, minus 14 by 3. So 5 minus 14 is minus 9. Minus 9 by 3 is minus 3. These are the correct values. What's the answer? A and B का value मिला बाकी के students को? Yes, sir. Okay. चलो तो let's move on to the next question, students. So I hope this concept is understood कि ये मैट्रिक्स X का पहले हमने ऑर्डर निकाल लिया, फिर मैट्रिक्स X को एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया हमने, उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी हैव फाउंड आउट X. ओके, नाउ वन लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग स्टूडेंट्स. A और B का वैल्यू तो हमें मिल गया, बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हमें कैपिटल X लिखना है. तो जस्ट कैपिटल X A और B इसमें डाल दो आप. तो रीड ऑफ लास्ट स्टेप आफ्टर दिस. ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से. So therefore capital X is, we want capital X, so A is 5 by 3, ठीक है, 5 by 3 and B is 7 by 3. This is required matrix. That's it. Now the problem is over. Okay, now let's move on to the next question. The next question is question number 20. 18th वाला हो गया, अभी 20th. 20th वाला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स हम. Okay, so what is there in the 20th one? Let's write down. We want to find out X. एक मैट्रिक्स, टोटल 3 मैट्रिक्स दिए हैं. write down 1x1, it's a row matrix. Then this is multiplied by another matrix. Okay, and this is again multiplied by a matrix 1 minus 2 3, and this is equal to 0 given. हमें X फाइंड करना है. X is to be found out.
Please note down this question first of all. I repeat, क्वेश्चन में x फाइंड करना है, that is given. Okay, now we know that matrix multiplication is associative. Matrix multiplication is associative. Please do not write down, just have a look. मतलब a into b into c is same as a into b into c. मतलब पहले आप a into b को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, या पहले b into c को मल्टीप्लाई करो, फिर a को उससे मल्टीप्लाई करो. It doesn't matter. They are equal always. तो अपन क्या करते हैं, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो आई जस्ट पुट अ ब्रैकेट, इसको ऐसा एक कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं मैं. मतलब पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम. ओके, लेट्स डू दिस वे. ओके, चलो. तो दिस इज बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. नाउ चेक, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. तो सी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स equals to number of rows of the second matrix. तो चलो क्विकली मल्टीप्लाई देम. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3. जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको. चलो क्विकली मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स एंड राइट डाउन व्हाट यू गेट स्टूडेंट्स. प्रोसीजर रिमेन सेम, रो टू द कॉलम, रो टू द कॉलम. ठीक है, अभी एक लाइन में शायद ही आए, देखो चलो मैं कोशिश करता हूँ एक लाइन में लिखने का. फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, रो टू द कॉलम. तो 1 1 जा, तो ये 1 प्लस x into 4, that is 4x plus 3. फर्स्ट रो टू द फर्स्ट कॉलम, एक एंट्री आ गया. फर्स्ट रो टू द सेकंड कॉलम, so that's 2 plus 5x plus 2. And then first row to the third column, so 3 plus 6x plus 5. Close the matrix का bracket, first वाला. Have you got this, everyone? Yes, sir. Okay. Now let's see what is going to, this matrix is going to remain same. ये वाला 1 minus 2 and 3 remaining same, and this is equal to 0 given. ठीक है. Now multiply these two matrix. जो मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करो. Now let's multiply these two matrix. तो रो टू द कॉलम, इधर भी एक ही रो है, इधर भी एक ही कॉलम है, तो सिंगल एंट्री मिलेगा स्टूडेंट्स. ओके, तो मैट्रिक्स का सिंबल डालो, द कंप्लीट रो टू द ओनली कॉलम. ठीक है ना. नाउ चेक हाउ विल दिस बिकम, यू नो, दिस एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1. तो ये तो मैं आपके रेफरेंस के लिए मार्क कर देता हूँ, रो को उठाने का इस कॉलम के ऊपर रखने का. तो दिस होल एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इनटू दिस. ठीक है, तो क्या आएगा, लिखो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 4x प्लस 3. ये है. देन दिस एंट्री मल्टीप्लाइड बाय -2, दिस एंट्री मल्टीप्लाइड बाय -2, पर बीच में प्लस का साइन डालना है, यू नो. रो टू द कॉलम सिर्फ एक ही एंट्री मिलेगा, तो दिस इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, -4, 2 इंटू -2 -4 -10x, और ये -4. ठीक है, और ये वाला एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट, प्लस का साइन बाय डिफॉल्ट आता है बीच में. दिस इज 9 प्लस 18x. ठीक है, 18x प्लस 15, एंड दिस इज इक्वल टू 0.
गिवन। तो आई दिस इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वही अपना नॉर्मल वाला प्रोसीजर है। ये एंट्री इसके साथ 1 एंड ऑल दैट वी हैव ओपन अप। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इनसाइड दिस ब्रैकेट। भी पहले x वाले टर्म्स जमा कर लो आप एक जगह पे। तो 4x minus 10x and plus 18x, how much is the total? So this is 8 plus 4, तो ये हो गया 12x। 12x आएगा। अभी कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स में क्या होगा? 1 plus 3, 4 इसके साथ कैंसिल हो गया। दिस इज पॉजिटिव 5, 5 plus 15, तो यह हो गया 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0 गिवन। आई होप एवरीवन मस्ट हैव गॉट टिल हियर। यहाँ तक मिल गया आपको? Yes, sir. Okay. Yeah. Now, please remember, इसके बाद can we do equality of matrices? Can we do it? Equality of matrices कर सकते हैं क्या? No. No. Yes. Correct. No, it cannot be done. We can't do equality of matrices. The reason is right hand side पे matrix नहीं है। देखो, recollect last time I have told to you कि equality of matrices करना है तो दोनों साइड पे matrix होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे नंबर है, तो मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ नंबर। नो, तो हम क्या करेंगे? इधर मैट्रिक्स का सिंबल डाल दो। इट्स अ नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 क्रॉस 1 होगा। प्लीज रिमेंबर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करने के लिए दोनों साइड पे मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ओके, तो चलो, नाउ यू इक्वेट। अभी आप कर लो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से। नाउ इट कैन बी डन। स्टूडेंट बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, जीरो तो है। नो, ऐसा नहीं है, पड़ता है फर्क, ठीक है ना। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस व्हाट डू वी गेट? 12x plus 20 is equal to 0. So therefore find out how much will be x in form of fraction। x का वैल्यू निकालो। थोड़ा कभी कभी ओरली करने की, यस एग्जैक्टली, थोड़ा जरा ओरली को करने की भी आदत डाल दो आप। हर एक स्टेप लिख के करने का दैट्स अ बैड आइडिया। देखो +20 वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, -20 ओरली कैसे करने का बताता हूँ। 12x is equal to -20, 12 इधर से नीचे चला जाएगा, तो x will be -20 by 12. Now they are both divisible by 5, so answer is 4. So answer is -5 by 3 is your final answer. Right hand side पे x is equal to -20 by 12 आएगा, they are both divisible by 4, so -5 by 3 is the answer. ये है x का वैल्यू। हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस मच इज अलाउड, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे फॉर दिस। Okay, so 18 and 20th, both the problems are done. Let's move on to the next one. If you have any doubt, you can ask. Okay, let's move on to question number 25, students. 25th question solve करते हैं। So all the previous examples that we did today, they were all for 2 marks each। 2-2 मार्क वाली प्रॉब्लम थे, और ये 25th वाला ये भी आप 2 मार्क का पकड़ के चलो, ठीक है। नाउ जस्ट लेट मी एक्सप्लेन एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। ओके, जरा मेरे को एक्सप्लेन करने दो करना क्या एग्जैक्टली इसमें। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम एंड देन यू कैन राइट डाउन। जय एंड राम आर 2 friends in a class. जय wanted to buy 4 pens। चलो पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, डू नॉट राइट डाउन। ओके, गिव मी टाइम। Now there are 2 friends and there are total 4 entries, तो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। जय वांटेड 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स, ठीक है। तो ये है जय वाला रो, ठीक है। जय इज 1 फ्रेंड एंड अनदर फ्रेंड इज राम। जय एंड राम, इसको मैंने रो में लिया है, इसको हम कॉलम में भी ले सकते हैं, जय और राम को, ठीक है। वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय, नाउ जय वांट्स टू बाय 4 पेन एंड 8 नोटबुक। ये पेन है, ये नोटबुक है। देखो, जय वांट्स टू बाय 4 पेन्स एंड 8 नोटबुक्स एंड राम वांट्स टू बाय 5 पेन्स एंड 12 नोटबुक्स। तो हमने क्या किया, जो डेटा दिया था उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लिया एंड वी हैव नेम्ड दैट मैट्रिक्स एज कैपिटल ए, ठीक है। Now the price of the pen and the notebook which they have selected is rupees 6 and 10। जो पेन एंड नोटबुक उन्होंने सिलेक्ट किया है उसका प्राइस है 6 and 10।
तो एक दूसरा मैट्रिक्स फॉर्म होगा मैट्रिक्स बी। अब उसका प्राइस है 6 and 10। 6 is for the pen, 6 ये जो 6 रुपीज है दैट इज फॉर द पेन, और जो 10 रुपीज है दिस इज फॉर द नोटबुक, दिस इज फॉर पेन एंड दिस इज फॉर द नोटबुक। ओके, तो चलो प्लीज राइट डाउन दीज टू मैट्रिक्स ए एंड बी। पहले लिख लो ए एंड बी मैट्रिक्स लिख लो आप, देन विल डिस्कस इट अहेड। हैव यू नोटेड दिस डाउन? ए एंड बी मैट्रिक्स लिख लिया आपने? Yes, sir. Okay, ठीक है। Now the question is, after getting the matrix A and B, how do we come to know कि A into B करना है या B into A करना है ना? How do we know what is going to exist? तो suppose पहले अपन देख ले, suppose B into A करने को गए, suppose if I try to multiply, do not write down this, ये मत लिखना, B into A multiply करने को गए हम, so now observe the order of matrix B. There are 2 rows and there are 1 column, 2 rows and 1 column है, and matrix A में there are 2 rows and 2 columns. So see, number of columns of first matrix not equal to number of rows of the second matrix. So B into A is not possible. B को A से multiply नहीं कर सकते, तो obviously फिर क्या करना पड़ेगा? We will have to do A into B only. We don't have a choice. Okay, so B into A is not possible. That is how we come to know. Okay, concept wise. अभी A into B multiply करते हैं, चलो, so let's do A into B वाला part. तो लिखो therefore matrix A multiplied by matrix B. See, matrix multiplication is not always commutative. A into B may not be same as B into A. देखो यहाँ पे A into B possible है, A का order है 2 cross 2 और इसका order है 2 cross 1. तो check number of columns of first matrix equal to number of rows of the second matrix. तो A into B तो possible है but B into A not possible. ठीक है, तो A is 4 8 in the first row, 5 12 in the second row, and matrix B is 6 10, which is a column matrix. Now you know how to multiply. So chalo, tell me matrix multiply karo and tell me the entries, entry in the first row and entry in the second row. First row. Done, sir. Okay, tell me first entry, first row to the first column wala entry. 104. Correct, very good. 104, correct. First row to the first column. Okay, now second row to the first column. तो ये वाला एंट्री मेरे को बताओ आप, someone else. 150. 150, yes, that's right. It is 150, correct. I hope everyone must have got this numbers, है ना? ठीक है, तो लिखो फाइनल आंसर। ठीक है, अभी जय के लिए, ठीक है, अब पेन कॉस्टेड 4 रुपीज एंड नोटबुक कॉस्टेड 8 रुपीज, तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? तो लिखो फाइनल आंसर, फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ देम। ओके, तो लिखो राम रिक्वायर्स, है ना, ये राम का आंसर है, राम नहीं, सॉरी राम नहीं, जय, फर्स्ट इज फॉर जय ना, दिस इज फॉर जय। जय रिक्वायर्स rupees 104, Jay requires rupees 104 and Ram requires rupees 150 to buy pens and notebooks. Jay requires rupees 104 and Ram requires rupees 150 for buying the pens and notebook. ये total cost है, ये जो 104 and 150 मिला ना, that is the total cost. तो जय को 104 रुपीज लगेंगे पेन और नोटबुक बाय करने के लिए, एंड राम विल रिक्वायर 150 रुपीज टू बाय पेन एंड नोटबुक, क्योंकि इसका पेन और नोटबुक का क्वांटिटी ज्यादा है, दिख रहा है ना, राम का पेन और नोटबुक का क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा पैसा लगेगा, कम है तो कम पैसा लगा उसको। Am I clear with this everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो बी इंटू ए अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना तो भी नहीं होगा। आई शो यू। वैसे तो मैंने कंसेप्ट वाइज बता दिया ए इंटू बी क्यों नहीं पॉसिबल है, बट आप बाई चांस करने को भी जाओगे ना तो देखो, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन। अभी ये 610 है, हाँ ये 610 और ये है 48 एंड इट इज 512, राइट। आप ये दोनों मैट्रिक्स को वैसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। अब रो को उठा के कॉलम के ऊपर रखोगे कैसे, ये तो रो में एक ही एंट्री है, एक एंट्री दो एंट्री के ऊपर थोड़ी जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एनीवेज नॉट पॉसिबल। यू कैन ऑब्जर्व एंड ऑल्सो कैन चेक कि बी इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। ऑर्डर वाइज भी बता दिया मैंने आपको, मतलब कंसेप्ट वाइज भी बता दिया, और विजुअलाइजेशन ऑल्सो यू कैन डू। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बी इंटू ए नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं करेंगे। हाँ बट there is one point over here which you need to remember कि suppose just have a look over here, एक इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई वाला पार्ट ऐसा है कि अगर मैंने मैट्रिक्स ए, इफ आई राइट डाउन मैट्रिक्स ए में इफ आई चेंज दिस, मतलब यहाँ पे 48 कर दिया और यहाँ पे 512 कर दिया, प्लीज चेक दिस स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने यहाँ पे 48 और यहाँ पे 512, मतलब ये जो पेन नोटबुक था ये पेन नोटबुक इधर आ गया, और इधर 512 पेन नोटबुक था, ये 512 इधर आ गया। तो 48 वाला जय वाला जो रो था वो जय वाला कॉलम बन गया, जय कॉलम में आ गया अभी। और जो राम रो में था वो राम कॉलम में आ गया, राम का कॉलम में कन्वर्ट हो गया ये। तो नाउ दिस इज पेन, यू चेक, ये पी बन गया, ये देखो ये पी है ना, तो ये P बन गया और ये N बन गया हमारे लिए, इस मैट्रिक्स A के लिए। और जो मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स B क्या होगा पता है, ट्रांसपोज ले रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग अ ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, तो इसका ट्रांसपोज ऐसे आएगा। ओके, नाउ कैन यू चेक एंड टेल मी वेदर इट विल बी A इंटू बी और B इंटू ए हियर। जरा आप कोशिश करके बताओ A इंटू बी होगा कि B इंटू ए होगा यहाँ पे, ये वाले इसमें। B into A. यस एग्जैक्टली, इट विल बी B इंटू ए होगा। A इंटू बी तो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है, देखो रो को उठा के रखोगे किसके ऊपर, है ही नहीं कुछ रखने के लिए B में, तो इट इज ऑब्वियसली B इंटू है। तो जरा चेक कर लेते हैं, 610 B है एंड A इज 45 एंड 812। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर वही आता है क्या, लेट्स चेक whether we get the same answer. Row to the column, pick up the row, place it on the column, so 24 plus 80, so that's nothing but 104, ये 104 आ गया। एंड अगेन रो टू द कॉलम, रो टू द कॉलम आप वापस मल्टीप्लाई करो ये, तो ये 30 प्लस 120, तो ये 150 आ गया। तो जो चीज यहाँ पे अपने को कॉलम में मिल रही थी वो यहाँ पे रो में मिल गई, इट्स द सेम आंसर। सी 104 150, इधर भी 104 एंड 150 आया। तो कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर बोथ ऑफ देम, बट व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे A इंटू बी किया और यहाँ पे हमने B इंटू ए किया, दोनों वे बता दिया। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो, ये भी आप लिख लो आपके रेफरेंस के लिए। हाँ, कंसेप्ट वाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने को प्रॉब्लम्स रट्टा नहीं मारने के हैं, है ना। सर ने A इंटू बी बोला तो हाँ चलो A इंटू बी है, समझ गया, जानना छोड़, कौन टेंशन लेगा, वैसी वाली बात नहीं है, ठीक है। जब अपने को नहीं आएगा तो फिर टेंशन अपने आप आ जाता है। तो यू शुड नॉट गेट टेंस्ड एट द एंड पॉइंट, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल द वेज दैट आर पॉसिबल। तो सब याद रखना है अपने को, ठीक है। कंसेप्ट वाइज वी शुड बी एकदम क्लियर, है ना। क्वेश्चन आ सकता है माइंड में, सर A इंटू बी किया, B इंटू ए क्यों नहीं, है ना, वो क्यों, वाई शुड नॉट एंड। हाँ, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि उसमें वाई को आंसर करना थोड़ा जरा डिफिकल्ट हो जाता है, बट देन स्टिल प्लीज नोट डाउन दिस वे ऑल्सो, ये A और B लिख लो और ये B इंटू ए आप मल्टीप्लाई कर लेना उसको बाद में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एग्जाम में आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, आइदर ऑफ द वे यू कैन डू द प्रॉब्लम। एनी डाउट्स यू कैन आस्क।